Hello and welcome everyone to the accountancy class. Today I am going to start a new chapter, the partnership accounting for partnership firm. It is considered as one of the most important chapter of class 12 CBSE commerce course. So let's start the chapter without any further delay. First of all, take a look of this chapter. First of all, in this video I am going to explain you all the theories of the partnership firm, and after completing the theories and concepts, then I will proceed to the some problems and illustrations. So let's start the theory and conceptual part. So in the introduction, this is a brief contents. What are you going to learn in this class? In this class, you are going to learn the introduction and basic definitions of partnership firm. That means the definition of partnership, partners firm and firm name, nature of partnership, features and characteristics of partnership, rights of partners, what do you mean by partnership deed, meaning and features and elements of partnership deed. उसके बाद provisions of the act in absence of partnership deed, etc. and etc. And then we are going to learn the difference between the charge against profit and appropriation of profit, the pro forma of the financial statements of partnership firm. Here we are going to learn the profit and loss account of partnership firm and the profit and loss appropriation account. Then we are going to see the journal entries, and after that we are going to see the methods of maintaining the partners capital account, that is the fixed capital account and the fluctuating capital account. And lastly, in the last phase, we are going to learn some past adjustments of the partnership firm and the guarantee of profits to a partner. So let's start the partnership firm. Hello and welcome everyone. I am your online tutor Shubhajit and you are watching CBSE Accountancy. Here you are going to learn class 11 and class 12 level accountancy of the CBSE board, both in Hindi and in Bengali language. If you like our video, please subscribe to our channel and also don't forget to hit the bell icon for regular updates. And also follow my Facebook page CBSE Accountancy. Now let's go to the video. First of all, the introduction and basic definition. So all the basic definitions and the rules and regulations of the Indian Partnership Act are governed of the Indian partnership firms are governed by the Indian Partnership Act 1932. This is a very old act, as it is suggested from the name. This is a very old act, as it is suggested from the year 1932. That means this act was enacted during the British period, and this act still today now governs all the rules and regulations of the Indian partnership firm. So as per the section 4 of this Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. So it means the partnership firm or the partnership business is the relation between between two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. So let's understand what does this means. So let's see. Here is a small firm. Here is a small firm. BR Enterprise. BR Enterprise. It is a small firm. It is a BR Enterprise deals with the business of garage. It runs the business of garage, and the owner of the it has only one owner. BR Enterprise has only one owner, and his name is Babu Rao. Perhaps I hope every one of you saw the movie Hera Fairy and Fear Hera Fairy, and the awesome duo, awesome trio of this movie, Babu Rao, Raju and Sham. We are going to take the example of this movie. So let's assume that the garage business of BR Enterprise is managed by a single owner, Babu Rao. So here what is happening? It is a sole proprietorship business. It is a sole proprietorship business.
It is a sole proprietorship business or farm. So every one of you learned in class 11 what is sole proprietorship farm is. That means the farm which is managed by only one owner. That means the farm which has only one owner. So in this example, BR Enterprise is such a farm which is managed by only one owner, Babu Rao. So what is partnership? So suppose that after conducting one after conducting the garage business of 1 year or 2 year, Babu Rao did not able to earn too much profit which he think he will be able to earn. So एक 3-4 साल बिजनेस करने के बाद बाबू राव को पता चला कि ये जो गैरेज है, इस गैरेज में उसे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है. एंड आफ्टर दैट two of his friends, Raju and Sham, approaches to Babu Rao. वो राजू एंड श्याम बाबू राव का जो दोस्त है वो बाबू राव के पास आता है और दे offer to do a joint business by three of them to conduct a joint business of car dealership. So two of Babu Rao's friends, Raju and Sham, came to Babu Rao and offered him to do a joint business by three of them. That means Babu Rao, Raju and Sham of car dealership business. And if they going to do the car dealership business together, then they will earn much more profit and their farm will be much more bigger. Babu Rao agreed, and the three of them open a bigger farm, car dealership farm. कार डीलरशिप फार्म. सो ये तीनों ने मिलकर एक बड़ा फार्म खुला कार डीलरशिप का. तो आफ्टर दैट देयर प्रॉफिट इंक्रीजेस एनॉर्मसली. सो ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये तीनों जो हो गया मालिक बाबू राव, राजू एंड श्याम, इन तीनों का कार डीलरशिप का कंपनी में बहुत सारे प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया. इट इंक्रीजेस देयर प्रॉफिट टू वेरी मच. सो इधर क्या हो गया इन दिस न्यू फार्म. ये जो न्यू फार्म है, in this new farm it has three owners. इस न्यू फार्म में 3 ओनर है, बाबू राव, राजू और श्याम. पहले जो फार्म था BR एंटरप्राइज, मतलब बाबू राव एंटरप्राइज, इसमें ये गैरेज का बिजनेस था और इसमें सिर्फ एक ही ओनर था, बाबू राव. सो ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा था बाबू राव को. इसलिए बाबू राव, राजू और श्याम ने मिलकर एक बड़ा कार डीलरशिप का फार्म खुला. सो ये कार डीलरशिप फार्म में 3 ओनर हो गया, बाबू राव, राजू एंड श्याम. सो ये हो गया एक पार्टनरशिप, बिकॉज इट हैज more 2 or more owners, because this farm has 2 or more owners. और ये तीनों ने मिलकर इस फार्म का नाम दे दिया, हेरा फेरी एंड को. ये हो गया फार्म नेम. तो क्या हो गया पार्टनरशिप का मतलब? पार्टनरशिप as per this definition of section 4, here I also write in my own handwriting, as per the definition of section 4 of the Indian Partnership Act, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or acting for all. इधर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, according to section 4 of the Indian Partnership Act, partnership is defined as the relation between persons. तो इधर क्या हो गया, आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं. Partnership is, as per section 4 of the Indian Partnership Act, partnership is defined as the relation between persons. तो पार्टनरशिप कुछ पर्सन्स मतलब कुछ व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध मतलब रिलेशन होता है. जैसे कि इधर बाबूराव, राजू और श्याम, 3 पर्सन के बीच आपसी संबंध है. टू कंडक्ट अ बिजनेस, who have agreed to share the profits of a business. तो ये जो बाबूराव, राजू और श्याम हो गया, ये एक बिजनेस, ये तीनों ने मिलकर एक आपसी संबंध स्टार्ट, एक आपसी रिलेशन से या आपसी संबंध से एक कार डीलरशिप फार्म स्टार्ट किया. और
इस कार डीलरशिप फर्म में जितने सारे प्रॉफिट होगा, मतलब ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर जितने सारे मुनाफा होगा, वो सब आप अपने आप को बीच among themselves they decided to share mutually. So this is called partnership. So here क्या हुआ, बाबूराव, राजू और श्याम तीनों ने मिलकर एक कार डीलरशिप का फॉर्म खुला। ये एक न्यू फॉर्म है और दोनों ये तीनों ने राजी हुआ कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी प्रॉफिट होगा they will share all this profit in an agreed ratio, say 2:1:1. तो यही हो गया पार्टनरशिप. So partnership, as per the definition of Partnership Act, the relation between persons. Here in this case, the relation between three persons, Baburao, Raju and Sham, who have agreed to share the profits of a business. ये तीनों ने जो कार डीलरशिप फर्म खुला उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो 2:1:1 रेशियो में शेयर करने के लिए एग्री, मतलब राजी हो गया. Of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो ये प्रॉफिट कहाँ से होगा, ये प्रॉफिट कार डीलरशिप फर्म का जो बिजनेस है, ये जो कार डीलरशिप फर्म का बिजनेस है, इससे यहाँ से प्रॉफिट होगा. और ये बिजनेस कौन चलाएगा पार्टनरशिप फर्म में, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट. ये बिजनेस तीनों पार्टनर मिलकर भी चला सकता है, मतलब बाबूराव, राजू और श्याम तीनों पार्टनर मिलकर भी चला सकता है, या फिर किसी एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल सपोज राजू, वो तीनों की बिहाफ से, मतलब जो बाकी दो को जो खुद है खुद, और बाकी जो पार्टनर है बाबूराव और श्याम, ये तीनों की बिहाफ से अकेला भी ये बिजनेस मैनेज कर सकता था या कर सकता है या फिर चला सकता है. सो यही है पार्टनरशिप का डिफिनेशन. उसके बाद और डिफिनेशन है फर्म. उसके बाद और डिफिनेशन है नंबर 1 पार्टनर्स. द पर्सन्स who have entered into partnership with one another are individually called partners. So इसका मतलब क्या हुआ, the persons who have entered into partnership with one another. तो इधर इस एग्जाम्पल में ये जो तीन पर्सन है बाबूराव, राजू और श्याम, ये तीनों ने एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. ये तीनों ने ये जो कार डीलरशिप का फॉर्म है, ये कार डीलरशिप फॉर्म की बिजनेस में एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया. तो मतलब क्या हुआ, इधर तीन आदमी है, देयर आर थ्री पर्सन, बाबूराव, राजू एंड श्याम. दे हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप. ये तीनों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया कार डीलरशिप फॉर्म में. तो ये तीनों को हम अलग अलग रूप से पार्टनर्स कहेंगे. सो इधर हम तीनों ने हम किसे पार्टनर्स कहेंगे, बाबूराव, राजू और श्याम. इन तीनों का इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग तौर से हम पार्टनर्स कहेंगे, क्योंकि इन तीनों आदमी या तीनों पर्सन ने मिलकर कार डीलरशिप फर्म का पार्टनरशिप बिजनेस है ये स्टार्ट किया. तो इन तीनों व्यक्ति को हम अलग अलग रूप से पार्टनर्स कहलाएंगे. इसके बाद आता है फर्म. द पार्टनर्स एक्ट. इसके तो ये हो गया पार्टनर्स का डिफिनेशन. इसके बाद आता है फर्म. द पार्टनर्स एक्टिंग कलेक्टिवली आर नोन एज फर्म. तो ये तीनों पार्टनर ने मिलकर, एक साथ मिलकर जो फर्म, जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कार डीलरशिप का जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस को हम कहेंगे फर्म. सो these three persons, Baburao, Raju and Sham, started the partnership business, and this partnership business, that means the car dealership business, we called it the firm. इसे हम फर्म कहलाएंगे. उसके बाद आता है, फर्म का डिफिनेशन हो गया. उसके बाद आता है फर्म नेम. फर्म नेम क्या होता है, द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम. सो हमने पहले जाना था कि चाहे सोल प्रोप्राइटर हो या फिर चाहे किसी भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का एक नाम होना चाहिए एज पर द इंडियन लॉ. तो इधर क्या हुआ है, इधर बाबूराव, राजू और श्याम ने जो कार डीलरशिप फार्म खुला है, पार्टनरशिप फार्म, इसका नाम दिया है फिर हेराफेरी एंड को. इसका नाम दिया है फिर हेराफेरी एंड को. तो ये जो नाम है फिर
इसका नाम दिया है हेराफेरी एंड को, तो ये जो नाम है हेराफेरी एंड को, इसे हम कहेंगे फर्म नेम, इसे हम कहेंगे फर्म नेम। So once more, I am giving a short recap. These three partners, बाबू राव, राजू एंड श्याम, ये तीनों ने मिलकर जो कार डीलरशिप का फार्म खुला है उसका एक नाम दिया है हेराफेरी एंड को, उसका एक नाम दिया है हेराफेरी एंड को, इसे हम कहेंगे फार्म नेम। तो ये हो गया फार्म नेम। अब आते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का नेचर के बारे में हम जानेंगे। सो पार्टनरशिप का दो नेचर होता है। फ्रॉम वन, नंबर वन इज, सो पार्टनरशिप का दो नेचर होता है। नंबर वन इज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड नंबर टू इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इधर देखिए, फ्रॉम अकाउंट, पार्टनरशिप का दो नेचर होता है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। पहले हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब, मान लो कि आप फार्म का जो, ये जो फार्म आपने स्टार्ट किया है, बाबू राव, राजू और श्याम, ये तीनों ने मिलकर ये जो फार्म स्टार्ट किया है, शुरू किया है हेराफेरी एंड को, इस फार्म को जितना भी अकाउंट्स होगा ये सब अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको, they have employed you as one of the accountant of the firm. So बाबू राव, राजू एंड श्याम आपको इस फार्म को अकाउंटेंट के हिसाब से सिलेक्ट किया है। सो एज पर द नेचर ऑफ द फर्म, एज पर द as per the accounting point of view of the firm, you should consider from the viewpoint of accountant। जो फार्म का जो अकाउंटेंट होगा वो फार्म का अकाउंट्स किस व्यू पॉइंट से मेंटेन करेगा, यही होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, a partnership firm is treated as a separate business entity। A partnership firm is treated so from accounting point of view, a partnership firm is treated as a separate business entity distinct from its partners। All business transactions are recorded in the books of the firm and not in the personal books of the partners। So accounting point of view से फर्म को और जो पार्टनर्स है उन दोनों का अलग माना जाएगा। मतलब फर्म एक अलग इंसान है और जो तीन ओनर्स है, मतलब तीन पार्टनर्स बाबू राव, राजू और श्याम, वो तीनों अलग इंसान है। और हम जो फर्म का अकाउंटेंट होंगे वो जो फर्म का जो अकाउंट्स होगा वो फर्म का अकाउंट्स अलग रूप से मेंटेन करेंगे और फर्म का पार्टनर्स का इसमें नहीं घसीटेंगे। सो इसका मतलब है, as an accountant of the firm, we should record all the business transactions of the firm in the books of the firm only and not in the books of the partners। So हमें इधर क्या होगा, from accounting point of view, so हमें इधर क्या होगा, from accounting point of view, we should record all the transactions of the firm in the books of the firm only and not in the personal books of the partners। So हर एक दिन जो फार्म का जो बिजनेस होगा तो हर एक दिन तो बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, तो जितने भी फार्म का बिजनेस और रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा उसको सभी जर्नल एंट्रीज हम फार्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, ना कि फार्म की जो पार्टनर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्योंकि फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, the partnership firm are treated as separate business entity from its partners। So partners को हम इसमें नहीं घसीटेंगे क्योंकि पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये हो गया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कानूनी रूप में फर्म को क्या कैसे देखा जाएंगे पार्टनरशिप को। सो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, a partnership firm is not treated as a separate legal entity। In the eyes of the law, the firm and the partners are one and the same। If the firm faces bankruptcy, the private estates, that is the personal assets of all the partners, can be utilized to pay the firm's debts।
सो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कानूनी दौर से फर्म को, कानून की आंखों से फर्म को और पार्टनर्स को सेपरेट नहीं माना जाएगा। पार्टनर्स और फर्म को एक ही इंसान माना जाएगा। सो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू a firm will not be treated as a separate legal entity. सो क्या होगा उस समय फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस फर्म को किसी पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से या फिर किसी आउटसाइडर से, मतलब किसी बैंक से या फिर किसी इंसान से कोई भी लोन लिया है, और उसके बाद वो लोन, जो फर्म ने जो लोन लिया है वो लोन रिपेमेंट करने से पहले ही फर्म को फाइनेंशियल बुरा खराब हालत की खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फर्म को फर्म क्लोज हो गया, मतलब फर्म बैंकक्रप्ट हो गया। तो बैंकक्रप्ट होने के बाद फर्म को कोई माने फर्म को कोई पास ऐसा कोई पैसा नहीं है, वो जो जितने भी सारे उधार लिया था वो बैंक से या फिर थर्ड पार्टी से उसे चुकाने के लिए। तो क्या होगा, तो इसी हालत में जो फर्म के जो तीन पार्टनर्स है, जैसे कि इधर एग्जांपल में बाबू राव, राजू और श्याम है, उन तीनों को आप चाहे भले ही आपने बैंक अकाउंट के जितने सी पर्सनल बैंक अकाउंट जो है, पर्सनल बैंक अकाउंट में जितने सारे पैसा होगा वो पैसे से, या फिर उधर भी पैसा कम है अपने बैंक अकाउंट में, तो आपने जितने सारे पर्सनल प्रॉपर्टीज है वो बेचकर वो थर्ड पार्टी लोगों का मतलब बैंक का या फिर कोई किसी सन्डी क्रेडिटर्स का सबके पास जितने से सारे लोन लिया था वो लोन को चुकाना पड़ेगा। सो एक बार और से हम समझते हैं, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कानूनी की दौर से फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा और फर्म और पार्टनर्स को एक ही माना जाएगा। तो अगर ऐसी हालत में फर्म ने किसी बैंक या फिर किसी सन्डी क्रेडिटर से बहुत सारे लोन या फिर उधार लिया है, और वो उधार और लोन चुकाने से पहले ही किसी खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फर्म को बैंकरप्सी हो गया, और वो फर्म ने वो जो जितने सारे उधार लिया था, लोन लिया था और या डेट लिया था वो चुका नहीं पाया, तब फर्म को जो पार्टनर्स होगा, जितने भी सारे पार्टनर्स होगा, फॉर एग्जाम्पल इन आवर केस देयर आर 3 पार्टनर्स बाबूराव, राजू और श्याम, वो तीनों पार्टनर को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से रुपया उठाकर वो डेप्ट पे करना पड़ेगा। और अगर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डेप्ट चुकाने के लिए मतलब लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने पर्सनल एसेट या फिर घर और मकान भी बेच डालना पड़ेगा, और उसके बाद वो थर्ड पार्टी का लोन जितना था वो चुकाना पड़ेगा। सो इधर ऐसे ही लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ द लॉ, द फर्म एंड द पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। इफ द फर्म फेसेस bankruptcy, the private estate, that is the personal assets of the partners, can be utilized to pay off the firm's debts. चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सो as per the partnership act there are some important features or characteristics of partnership, वही हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1, 2 or more persons, there must be at least 2 persons to form a partnership. The maximum number of partners is restricted to 50 as per section 464 of the Companies Act 2013, read with rule 10 of the Companies Rules 2014. So एक पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स मतलब 2 ओनर्स का जरूरत होता है, और मैक्सिमम होता है 50। पहले 100 था शायद, लेकिन कंपनीज लेकिन जो कंपनीज एक्ट था 2013 उसमें रूल 10 नाम का, उसमें जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसमें रूल 10 नाम का एक अमेंडमेंट आया था। रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 नाम का एक अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट में जो पार्टनरशिप फर्म का मैक्सिमम मेंबर्स उसका लिमिट 50 कर दिया गया। सो इन केस सो टू बिकम अ पार्टनरशिप फर्म होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और ओनर्स 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। अगर 2 से कम हो गया मतलब 1 हो गया, एक में ओनर फिर एक मेंबर हो गया, तो फिर वो वापस सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, पहले जो बाबूराव का गैरेज था उसमें सिर्फ एक ही मालिक था बाबूराव, सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में 2 से कम मेंबर हो जाएगा एक, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा।
और मैक्सिमम कितना हो सकता है मेंबर 50। अगर 50 से एक ज्यादा हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो ये इलीगल हो जाएगा, इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद आता है 2, एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स। Partnership is the result of an agreement between individuals. It does not arise by operation of law. The agreement can be oral or written. So पार्टनरशिप के एक अहम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है एग्रीमेंट। सो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट मतलब शुरू करने से पहले जितने भी सारे पार्टनर्स है वो अपने आपसी बीच में एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मतलब मुंह बोली भी हो सकता है, और रिटन भी हो सकता है, मतलब लिखित रूप में भी हो सकता है। दोनों ही वैलिड एज पर द आइज ऑफ लॉ, दोनों ही वैलिड है एज पर आइज ऑफ द लॉ। लेकिन लिखित एग्रीमेंट होने से फर्म की पार्टनर्स को इन फ्यूचर बहुत सारे सुविधा या फायदा मिल सकता है जो ओरल और मुंह बोली एग्रीमेंट से नहीं मिलेगा। वो हम बाद में जब पार्टनरशिप डीड पर के बारे में बोलेंगे तो अब विस्तारित रूप से समझाऊंगा। तो अभी इतना जान लो, एक पार्टनरशिप फर्म की सबसे अहम होता है उन पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप फर्म शुरू होने से पहले जितने भी सारे पार्टनर्स है वो अपने आप के बीच एक एग्रीमेंट बना लेता है। तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और उस एग्रीमेंट में सभी फर्म्स का जो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखा रहेगा, या फिर वो अपने आप कहलाए जाएंगे अगर ओरल हुआ तो ये हो गया एग्रीमेंट। उसके बाद लॉफुल बिजनेस। द एग्रीमेंट मस्ट बी carried on some lawful business, trade or profession. Joint ownership of property does not constitute a partnership. तो business requires regular and continuous transactions. A single transaction is also not considered a business. So पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म होने के लिए एक और इम्पोर्टेंट रूल्स है कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस होगा वो बिजनेस लीगल यानी लॉफुल होना चाहिए। अगर पार्टनर्स ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया किसी इलीगल बिजनेस जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग स्मगलिंग या फिर किसी और इलीगल बिजनेस बम बनाने के लिए या फिर किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए किया, तो वो इलीगल माना जाएगा क्योंकि ये सब तो इलीगल है एज पर द लॉ। सो कानून की हिसाब से वो सब इलीगल है। और जो लीगल बिजनेस है जैसे कि एग्जांपल दिया था कार डीलरशिप या फिर किसी और भी किसी हो सकता है, किसी केक का दुकान, किसी स्टेशनरी का दुकान, या फिर किसी प्रोमोटरशिप मतलब रियल एस्टेट फर्म भी हो सकता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो सकता है, या फिर लॉयर्स का फर्म हो सकता है। ये सब लीगल प्रोफेशन और बिजनेस है, तो ये पार्टनरशिप फर्म शुरू करता है। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी इलीगल बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब जैसे कि बताया ड्रग स्मगलिंग की बिजनेस या फिर टेररिज्म का बिजनेस, तो इसे हम इलीगल मानेंगे और इसे ये पार्टनरशिप नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ पार्टनरशिप। और उसके अलावा पार्टनरशिप होने के लिए रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज और रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। अगर मान लो किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ कुछ पार्टनर्स के बीच और उसमें प्रॉफिट भी हो गया, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। सो इधर एक एग्जांपल दिया है। सो उस एग्जांपल के सिंगल ट्रांजैक्शन जो है उसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे इधर लिखा है अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस। तो बिजनेस होने के लिए क्या होना चाहिए? इट रिक्वायर्स रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग ने शायद किसी और से सुना होगा, अरे तुम तो क्या ये बिजनेस बना चुका हो, मतलब जब भी किसी इंसान ने किसी काम हर रोज करता है और उससे प्रॉफिट भी कमाता है तो भी हम उसे बिजनेस कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान कोई एक काम किया, सिंगल ट्रांजेक्शन किया और उसमें प्रॉफिट कमाया लेकिन बाद में वो काम नहीं किया, तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इधर दो दोस्त है, अनमोल अनमोल और शौर्या, अनमोल और शौर्या, ये दो दोस्त है। ये दो दोस्त
एक बार स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में उन्हें एक मोबाइल फोन मिला। ये अनमोल और शौर्य दो दोस्त स्कूल से अपने घर लौट रहा था। घर लौटने की वक्त रास्ते में उसे एक दुकान मिला, रास्ते में उसे एक मोबाइल शॉप मिला, और उस मोबाइल शॉप से वो दोनों ने, अनमोल ने 5,000 रुपया दिया, अनमोल ने 5,000 रुपया दिया और शौर्य ने 5,000 रुपया देकर, तो मतलब टोटल 10,000 रुपया देकर एक मोबाइल फोन खरीद लिया। They buy a mobile. They buy a mobile by investing rupees rupees 5,000 each, total costing rupees 10,000. सो अनमोल और शौर्य एक दिन स्कूल लौटने की समय रास्ते में एक मोबाइल शॉप देखा। उस मोबाइल शॉप में घुसकर वो दोनों ने 5,000 रुपया देकर, टोटल कुल मिलाकर 10,000 रुपया देकर एक मोबाइल फोन खरीदा। फिर 2 दिन बाद वो दोनों ने, आफ्टर 2 days, they sell the mobile to their another friend, Ramu, at the rate rupees 15,000, and earned a profit of rupees 5,000. तो 2 दिन बाद, मतलब मोबाइल फोन खरीदने की 2 दिन बाद वो अपने एक और दोस्त रामू के पास वो मोबाइल फोन 15,000 रुपया में बेच दिया। तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ? वो खरीदा था वो मोबाइल फोन 10,000 रुपया देकर, और 15,000 रुपया देकर सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। तो उनको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपया। लेकिन इसके बाद वो और कोई मोबाइल फोन नहीं खरीदा और मोबाइल फोन भी नहीं बेचा। तो क्या इसे पार्टनरशिप फार्म कहलाएंगे? क्योंकि इधर तो 2 पार्टनर्स है, मतलब एक से ज्यादा है, 2 है, अनमोल और शौर्य, और दोनों ने दो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है। एक किया है, मोबाइल फोन परचेस किया था, खरीदा था 10,000 रुपया, 5,000 देकर 10,000 रुपया में से। और एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो अपने दोस्त, एक और दोस्त रामू के पास वो 15,000 रुपया देकर मोबाइल फोन बेच दिया। तो उनको प्रॉफिट हो गया 5,000। तो क्या हम इसे पार्टनरशिप कह सकते? नो, एज पर द पार्टनरशिप रूल्स we cannot call them partnership because it is not a business, it is only a single transaction. ये कोई रेगुलर फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है, ये एक सिंगल अकेला ट्रांजेक्शन है। अगर वो हर रोज, अगर वो दोनों दोस्त मिलकर एक मोबाइल स्टोर बना लेता और हर रोज किसी मार्केट से मोबाइल फोन 10,000 रुपया या फिर किसी और दाम में खरीद कर इधर ज्यादा दाम में बेचता हर रोज, तभी हम उसे पार्टनरशिप फर्म कह सकता था। लेकिन क्योंकि इधर एक सिंगल ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब एक बार ही वो मोबाइल फोन खरीद कर बेचा, सो इसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये दोनों हो गया, लॉफुल बिजनेस भी हो गया। उसके बाद होता है प्रॉफिट शेयरिंग। The primary motive of partnership must be to earn and share profit. A charitable institution run by individuals is not partnership. So पार्टनरशिप होने के लिए एक बिजनेस होने की जरूरत है। बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट कमाना। सो क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, सो इसका मतलब इसे 2 और 2 से ज्यादा ओनर्स है। तो
कोई एक ओनर तो अकेला वो पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकता, तो हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। तो यही होता है प्राइमरी मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना। सो यही होते हैं प्राइमरी मोटिव ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना, और फिर जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो अपने अपनों के बीच शेयर कर देना, टू शेयर प्रॉफिट्स। A charitable institution run by individuals is not partnership। तो जितने भी सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि क्लब या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी और भी किसी हो सकता है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एमनेस्टी है, रेड क्रॉस है, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन उन जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि क्लब या फिर हॉस्पिटल या फिर रामकृष्ण मिशन, उन लोगों का काम, उन लोगों का जो इंस्टीट्यूशन है वो नॉन प्रॉफिट है, उनको मतलब बिजनेस करके प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो जैसे कि आपको शायद पहले एक चैप्टर हुआ करता था, अभी वो चैप्टर डिलीट हो गया सिलेबस से, उसका नाम था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उधर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन लोगों के जो बिजनेस है, उन लोगों को जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहलाते थे, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशन है उसका मोटिव प्रॉफिट मतलब लाभ कमाना नहीं था, उनका मोटिव था जो जितने भी सारे इंसान है, इंसान को सेवा करना। सो उसे हम, जो जितने भी सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएंगे। पार्टनरशिप फर्म वही होता है जिसका मतलब है बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना, और वो सिर्फ, और उसके बाद वो सारे प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच शेयर कर लेना। उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप फर्म का। तो दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, this is the cardinal principle of partnership। Every partner is both an agent and a principal, so so every partner is both an agent means can bind other partners by his acts, and a principal is bound by the acts of other partners। so basically इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन और मालिक नौकर की रिलेशन। so ये हम समझते हैं। इधर जो एग्जाम्पल लिया था, एक पार्टनरशिप फर्म है बाबूराव, राजू और श्याम। तो सपोज एक दिन क्या हुआ, ये जो तीन पार्टनर्स है बाबूराव, राजू और श्याम, ये तीन पार्टनर्स में से बाबूराव का उम्र ज्यादा था और उनका तबीयत खराब रहता था। एक बार उनका तबीयत खराब हो गया तो वो हॉस्पिटल में चला गया, और इसीलिए वो 15 दिन के लिए पार्टनरशिप फर्म से छुट्टी ले लिया। छुट्टी लेने से पहले वो बाकी जो दो पार्टनर्स है उनको ऑर्डर दे गया कि अभी ये 15 दिन पार्टनरशिप फर्म का जितना भी काम होगा वो तुम दोनों संभाल लेना, मैं 15 दिन बाद वापस आकर ज्वाइन करूंगा। तब बाकी जो दो पार्टनर्स है राजू और श्याम राजी हो गया, और ये 15 दिन जितना भी सारे काम हुआ पार्टनरशिप फर्म का वो ये दोनों ने संभाल लिया। तो इधर क्या हो गया, सो बाबूराव इधर मालिक मतलब प्रिंसिपल बन गया, और वो बाकी जो दो पार्टनर्स है राजू और श्याम, वो दोनों को ऑर्डर देकर अपने ऑर्डर में बाइंड कर दिया। तो मतलब प्रिंसिपल मतलब ओनर, मालिक हो गया। इधर बाबूराव जो है वो मालिक बन गया, और मालिक बनकर उनको जो एम्प्लॉय है मतलब जो दो पार्टनर्स है, बाकी दो पार्टनर्स को एम्प्लॉय बनाकर उन दोनों को ऑर्डर दे गया कि ये 15 दिन, जितने दिन में ये 15 दिन में एब्सेंट रहूंगा, वो उतने दिन तुम लोग पार्टनरशिप का जो फर्म का जितना भी काम होगा बिजनेस रिलेटेड तुम लोग संभाल लेना। तो इधर क्या होगा, राजू और श्याम क्या हो गया, राजू और श्याम हो गया एम्प्लॉय, मतलब बाबूराव के एजेंट हो गया, एजेंट। तो एजेंट का मतलब है दैट इज एम्प्लॉय और नौकर। तो इधर क्या होगा, बाबूराव छुट्टी ले लिया, और छुट्टी लेने से पहले एज अ ओनर बाकी दो पार्टनर्स का ऑर्डर दे दिया, और
बाकी जो तो पार्टनर्स है वो एज अ एम्प्लॉय मतलब एजेंट उनका काम संभाल लिया. तो इधर बाबूराव इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एंड द अदर टू पार्टनर्स राजू एंड श्याम एक्टेड एज हिज एजेंट्स. और उसके बाद तीन चार महीने बाद एक दिन शाम जो है, शाम का माँ का तबीयत खराब हो गया. तो शाम ने बाकी जो दो पार्टनर्स है राजू और बाबूराव उनको कह दिया मैं अपने गांव में मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपने गांव में अपने घर में जा रहा हूँ अपने माँ को देखने. तो मैं इसीलिए अगले 10 दिन नहीं आ सकूंगा फार्म में. तो ये 10 दिन जितना भी सारे काम होगा वो बाबूराव और राजू तुम दोनों मिलकर संभाल लेना. तो इधर क्या हो गया, शाम एक्टेड एज अ प्रिंसिपल, दैट मीन्स ओनर. तो शाम ओनर बन गया और प्रिंसिपल बन गया. प्रिंसिपल बनकर बाकी जो वो पार्टनर्स है राजू और बाबूराव उन दोनों को ऑर्डर्स दे दिया. तो बाबूराव और राजू क्या हो गया, बाबूराव और राजू ये 10 दिन जितने 10 दिन शाम एब्सेंट रहा उस 10 दिन के लिए पार्टनरशिप फार्म में जितना भी सारे काम है वो दोनों संभाल लिया. तो इधर ये जो दो है बाबूराव और राजू ये दोनों एक्टेड एज द एजेंट मतलब एम्प्लॉई और नौकर. तो इधर क्या हो गया, इधर पूरा उल्टा हो गया. पहले बाबूराव ऑर्डर दिया था और राजू और श्याम पालन किया था. लेकिन इधर श्याम छुट्टी ले लिया. तो छुट्टी लेने से पहले वो श्याम ऑर्डर दे दिया और बाबूराव और राजू पालन किया वो उस ऑर्डर. तो श्याम हो गया प्रिंसिपल और बाबूराव और राजू हो गया हिज एजेंट. तो यही रिलेशनशिप होता है इन पार्टनरशिप फॉर्म. इन पार्टनरशिप फॉर्म एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल. जितने भी सारे पार्टनर हैं वो एक दूसरे का एजेंट भी है मतलब मालिक भी है और एक दूसरे का सॉरी ये इधर जितने भी सारे पार्टनर्स है वो एक दूसरे का एजेंट भी है मतलब एम्प्लॉय भी है मतलब नौकर भी है और एक दूसरे का प्रिंसिपल मतलब ओनर भी है और मालिक भी है. तो एजेंट का मतलब एम्प्लॉय, एजेंट का मतलब एम्प्लॉय और नौकर और प्रिंसिपल का मतलब ओनर. तो ये पार्टनरशिप फर्म में जितने भी सारे पार्टनर्स है वो एक दूसरे का एम्प्लॉय भी है मतलब एजेंट भी है और एक दूसरे का प्रिंसिपल मतलब ओनर भी है. सो दिस इज व्हाट वी नोन एज वी कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी. उसके बाद आता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स. सो राइट्स ऑफ पार्टनर्स में हम देखेंगे क्या क्या स्टैंडर्ड राइट्स है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ फॉर एवरी पार्टनर. नंबर 1, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो. तो हर एक पार्टनर्स के पास अपने राइट मतलब अधिकार होता है पार्टनरशिप फर्म में जितने भी सारे प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का अपने अपने अपनों के बीच एक एग्रीड रेशियो में बांटने का. सो मतलब उधर जो एग्जांपल लिया बाबूराव राजू और श्याम दे उन तीनों का ही हक है. बाबूराव राजू और श्याम वो तीनों का ही हक मतलब तीनों का ही अधिकार है इस पार्टनरशिप फार्म से जितने भी सारे प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एक एग्रीड रेशियो में शेयर करने के लिए शेयर करने का या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का. तो सपोज दैट दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एज 2:1:1 रेशियो. सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो. ये पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है. अगर किसी भी पार्टनर आगे कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स की भी साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए राजी नहीं हुआ तो पार्टनरशिप फर्म आइदर तो नहीं बनेगा या फिर उस पार्टनर को बाहर कर दिया जाएगा. उसके बाद आता है राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. इधर हर एक पार्टनर्स को अधिकार होता है, राइट होता है टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का जो मैनेजमेंट और कंडक्ट होता है उसमें हिस्सा लेने का
मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस होता है उसमें जो मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हिस्सा लेने का या फिर पार्ट लेने का पूरा अधिकार होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि इधर बाबूराव जो है, ही इज अ ओल्ड पर्सन एंड ही डज नॉट, मैंने बाबूराव जो है एक बहुत ही ओल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, और उसका तबीयत हर एक समय खराब रहता है। तो वो जो है वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में ज्यादा काम करना बंद कर दिया, और राजू और श्याम जो है वो थोड़ा यंग है और एनर्जेटिक है, वही बिजनेस रिलेटेड जितने भी सारे काम है पार्टनरशिप फर्म का सभी संभालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबूराव जो बिजनेस का मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बाबूराव का हक और पूरा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट बाबूराव का पूरा अधिकार है, मतलब पूरा राइट से इस जो पार्टनरशिप फर्म है इस पार्टनरशिप फर्म का सभी मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेने का, चाहे भले ही वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं रहे या फिर एक्टिव रहे। उसके बाद आता है राइट टू बी कंसल्टेड इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। तो इधर हर एक पार्टनर्स को पास राइट मतलब अधिकार होता है टू बी कंसल्टेड इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है हर एक पार्टनर्स को। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिसीजन एक बार शायद किसी फार्म, मान लो कि एक बार पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो गया और पार्टनर्स ने मिलकर एक दूसरे को एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग में पार्टनर्स ने कुछ सुझाव दिया, कंसल्टेशन दिया ताकि कैसे पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा किया जा सकता है। तो इस कंसल्टेशन में इस कंसल्टेशन मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हर एक पार्टनर्स के पास अधिकार होता है। जैसे कि हम किसी पार्टनर्स को ऐसे ही मना नहीं कर सकता है कि आप मत आओ ये कंसल्टेशन मीटिंग में। जैसे कि इधर फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया, बाबूराव इज अ ओल्ड पर्सन, बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और वो उसका तबीयत खराब रहता है, इसलिए बाबूराव सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन पार्टनर्स का जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें ज्यादातर हिस्सा नहीं लेता। तो एक बार क्या हो गया, एक बार ये जो फार्म है हेरा फेरी एंड कंपनी, इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गया। तो राजू और श्याम ने एक मीटिंग बुलाया और इस मीटिंग में उन्होंने इस बिजनेस का हालत कैसे सुधर जाएगा, इसके बारे सुधरा जाएगा, इसके बारे में कुछ कंसल्टेशन मतलब कुछ सुझाव दे दिया एक दूसरे को, लेकिन बाबूराव को नहीं बुलाया। तो क्या ये लीगल है? नहीं, ये लीगल नहीं है, क्योंकि भले ही बाबूराव बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता है अपने तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन एज अ पार्टनर ही हैज एवरी राइट टू बी ज्वाइंट इन द कंसल्टेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो बाबूराव का पूरा अधिकार है वो कंसल्टेशन मीटिंग, जो पार्टनर्स का बीच जो कंसल्टेशन मीटिंग हुआ था उसमें हिस्सा लेने का, और वो अगर चाहे बाबूराव अगर चाहे तो वो खुद भी कंसल्टेशन दे सकता है कैसे फर्म का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा किया जा सकता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट राइट। उसके बाद आता है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पार्टनर्स के पास अधिकार होता है, राइट होता है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जितने भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको जब भी मन चाहे इंस्पेक्ट करने के लिए या फिर यानी कि देखने के लिए, और अगर चाहे तो उसका एक कॉपी भी अपने पास रखने का। तो मतलब फॉर एग्जांपल, क्योंकि इधर बाबूराव का तबीयत खराब रहा, इधर बाबूराव का तबीयत खराब हो गया और वो जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा नहीं ले पाया, तो इसीलिए राजू और श्याम ने वो दोनों ने मिलकर फर्म्स का जितना भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाबूराव को वो फर्म्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाएगा। एक बार बाबूराव के मन में सस्पिशन हो गया कि बाकी जो दो पार्टनर्स है राजू और श्याम वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे कि उस मूवी में एक बैकग्राउंड म्यूजिक था, गोलमाल है भाई कुछ गोलमाल है। तो बाबूराव को एक बार शक हो गया, मतलब सस्पिशन हो गया कि कुछ गोलमाल तो है, राजू और श्याम उन्हें छुपा रहा है। तो बाबूराव जाकर
राजू और श्याम से वो बिजनेस रिलेटेड जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको देखने के लिए मांगा। तो क्या उस समय राजू और श्याम मना कर सकते हैं बाबूराव को कि क्योंकि आप बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते हो अपने तबीयत खराब होने की वजह से, तो हम लोग आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखा सकता है। तो क्या ये इज इट पॉसिबल? नो, एज पर दी पार्टनरशिप रूल्स इट इज नॉट पॉसिबल। एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, एक पार्टनर होने के नाते बाबूराव का पूरा अधिकार है जब भी मन चाहे तब भी ये जो फर्म है हेरा फेरियन को इसके जितने भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इंस्पेक्ट करने का, मतलब देखने का। और अगर उसको अगर वो बाबूराव चाहे तो वो जितने भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका एक सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी जैसे कि फोटो कॉपी अपने पास भी रख सकता है। ये उनका पूरा अधिकार है। इसके बाद आता है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर को पास अधिकार होता है, एक इम्पोर्टेंट अधिकार होता है एक न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के लिए या फिर माना एडमिट करने से मना करने के लिए। तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल इधर जो फर्म है इस तीन हेराफेरियन को इसमें तीन पार्टनर है बाबूराव, राजू और श्याम। तो फर्म का जो फाइनेंशियल कंडीशन है जैसे मैंने पहले ही बताया था बहुत अचानक बहुत खराब हो गया। तो बाबूराव, राजू और श्याम ने एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग में बहुत सारे कंसल्टेशन करने के बाद राजू ने कहा, राजू जो चालाक था वो कहा मैं मेरा एक दोस्त है वो बहुत ही अमीर है, उसका नाम है मोगम्बो। तो मैं मोगम्बो को इस पार्टनर्स में इस पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर के रूप से एक न्यू पार्टनर के रूप से एडमिट करना चाहता हूँ। तो मतलब राजू चाहता है कि उसका एक अमीर दोस्त मोगम्बो इस पार्टनर क्या इस पार्टनरशिप फर्म हेराफेरी कंपनी का एक नया पार्टनर बने। और नया पार्टनर बनने के बाद मोगम्बो प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड मच इन्वेस्टमेंट टू द फर्म। तो मोगम्बो ने प्रॉमिस किया कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म का जो हेराफेरी फर्म है उसका उसका एक नया पार्टनर बन जाए तो उसके बाद वो बहुत सारे रुपया इन्वेस्ट करेगा और फर्म को जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है वो घटा देगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस सुधर देगा तो फर्म का हालत अच्छा हो जाएगा। तो ये बात सुनकर राजू और श्याम जो है, राजू तो पहले ही राजी था क्योंकि राजू का दोस्त थे मोगम्बो, और श्याम भी राजी हो गया। लेकिन बाबूराव को मन में कुछ शौक हो गया कि ये मोगम्बो अच्छा नहीं है, वो एक विलेन आदमी है, वो आकर कुछ तो गड़बड़ या कुछ गोलमाल करेगा। तो बाबूराव मना कर दिया, नहीं, मैं मोगम्बो को आई विल नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ मोगम्बो एज द न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म। तो क्या ये वैलिड है? क्योंकि राजू और श्याम तो राजी हो गया, दोनों पार्टनर तीन तीन में से दोनों पार्टनर राजी हो गया मोगम्बो को एडमिट करने के लिए। लेकिन बाबूराव नहीं राजी हुआ तो वो एक माइनॉरिटी है। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, एज पर द पार्टनरशिप रूल even a single partner has the right to disallow the admission of a partner new partner. So पार्टनरशिप फर्म की रूल के हिसाब से एक सिंगल पार्टनर को भी पास पूरा अधिकार होता है एक नया पार्टनर को एडमिशन अलाउ या डिसअलाउ करने का। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। तो एक बड़ा एग्जांपल हम समझते हैं। सपोज दैट in a farm there are 48 partners। एक फर्म में 48 पार्टनर्स है। सपोज दैट इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर 48 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में 48 पार्टनर्स है। आउट ऑफ देम 47 partners want to admit Mr. A as the new partner of a firm।
of a firm, but one partner disagree, the admission of मिस्टर ए। तो इधर क्या हुआ, एक फर्म में 48 पार्टनर्स है और उस 48 पार्टनर्स में से 47 पार्टनर्स, मतलब 48 से 47, 48 पार्टनर्स टोटल है, उसमें 47 पार्टनर्स वांट टू एडमिट मिस्टर ए की नाम की एक और आदमी को फर्म की न्यू पार्टनर के रूप से एडमिट करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर, ओनली वन पार्टनर डिसएग्री द एडमिशन ऑफ मिस्टर ए। सिर्फ उस फर्म में सिर्फ एक पार्टनर मिस्टर ए का एडमिशन को डिसएग्री कर देता है। तो क्या ये हो सकता है? यस, एज पर द पार्टनरशिप रूल ओनली वन पार्टनर कैन ऑल्सो डिसएग्री और डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इधर ही ये पॉइंट लिखा गया है, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है नया पार्टनर को, जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन अलाउ या फिर डिसअलाउ करना। तो अगर उस फर्म में जो बताया था 48 पार्टनर्स है, or if they want to admit Mr. A as the new partner of a firm, then all of the 48 partners should agree his admission. 48 पार्टनर, पूरा जो 48 पार्टनर्स है उनमें से सभी पार्टनर्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी मिस्टर ए कैन एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म। इवन इफ वन पार्टनर डिसएग्री, देन मिस्टर ए कैन नॉट बी एबल टू एडमिट एज द पार्टनर ऑफ द फर्म। इसके बाद होता है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो हर एक पार्टनर के पास पूरा अधिकार है उस पार्टनरशिप फर्म से हमेशा के लिए रिटायर ले लेना, लेकिन उसके पहले उसे बाकी जो पार्टनर्स है उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। जैसे कि इधर नौकरी में भी, बहुत सारे नौकरी में भी ऐसा हो सकता है, किसी भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को छोड़ सकता है या फिर रिटायर कर सकता है, लेकिन उसके पहले वो उस कंपनी को 1 महीने का या फिर 2 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है। तो उधर फर्म में भी ऐसे ही रूल्स है, हर एक पार्टनर के पास पूरा अधिकार होता है फर्म से रिटायर ले लेने का, लेकिन रिटायर लेने से पहले बाकी जो जितने सारे पार्टनर्स है उनको एक प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर जो है बाबूराव, राजू और श्याम, तो इसमें बाबूराव का बहुत ही ओल्ड पर्सन है, उसका तबीयत खराब रहता है, तो बाबूराव ने डिसीजन ले लिया अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब वो और बिजनेस नहीं करेगा, वो हीरा फेरी को जो नाम के जो फर्म है उससे रिटायर ले लेगा। तो वो बिल्कुल रिटायर ले सकता है, लेकिन रिटायर लेने से पहले उसको राजू और श्याम, बाकी जो 2 पार्टनर्स है, उसको एक प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ेगा। उसके बाद आता है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन एनी लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फर्म। तो अगर पार्टनरशिप जो फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है किसी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, और ऐसे भी हो सकता है कभी कभी पार्टनरशिप फर्म भी वो पार्टनर्स को लोन दे सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, तो इन द केस ऑफ फर्म जो लोन देता है पार्टनर्स को, फर्म गिविंग लोन टू द पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट, द फर्म कैन नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया और पार्टनरशिप डीड में उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये नहीं लिखा हुआ है, तब भी उनको एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये हम बाद में समझेंगे।